Hi everyone, I'm Harshita, and after a lot of doubts and questions about the NDS program from the students, today I'm here with Mr. Nitin Goswami, the CEO and founder of NG Networks, and he will be answering all these questions. So I hope by the end of the video, all your doubts are cleared. So my very first and important question is, why not CCIE? Why are you guys selling something apart from CCIE when the whole market, the whole industry is, just they want to go for CCIE? I really expected this question because this is true. That everyone in the market is selling, like, if you want a job into the networking domain, then go for the CCIE certification. So the very first thing, you should be aware what exactly is the CCIE. CCIE is the most prestigious certification into the IT infrastructure networking domain. Like, if you want to just reach out to the end level of the networking, so CCIE is the certification. And Cisco itself mentioned on its website, if you just Google the Cisco website and you go and check there, that if you want to go for a CCIE, they especially mention in the prerequisite that you should have 5 years of experience, that is real-time experience into the industry, then go for the CCIE certification. But now it is look like a certification that everyone is going by doing some basic knowledge, and they will go for the CCIE certification directly. Highly not recommended. If you speak to any experienced guy, you will come to know that no, it is not a right cup of tea if you are looking for a job, if you are doing it as a job perspective. So this NDS program that you are mentioning, could you please describe more about this? So basically, NDS is not just a program, it's a complete package. With the help of NDS program, we can fill the gap between the job seeker and a job provider. Look, if you're a job seeker, आपको क्या चाहिए? You need a good job, a good package, and a well-renowned MNC. So if I talk about an MNC, they are looking for the candidate. They're also looking for the candidate. उनको क्या चाहिए? They have a certain set of roles and responsibilities that we call job description. They release a job description. We have 15, 16 or 20 lines in a job description, and that completely focus on a particular skill set. When we talk about that skill set, so this is a place where most of our students lack and they are not aware of it. तो वो हमने पूरा का पूरा इमेजिनेशन के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, वी हैव फिल्ड दैट गैप इनटू द पर्टिकुलर प्रोग्राम नेम्ड एज एनडीएस. तो हमने उसको एनडीएस के अंदर फिल कर दिया है. अब मैं एनडीएस के बारे में अगर मेन चीज बताऊं, तो इसके अंदर जो हमारे स्किल सेट है ना, जिसको मैं रिवील करूंगा आपके सामने, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, वी बेसिकली कवर 4 स्किल सेट. द वेरी फर्स्ट थिंग इज द कम्युनिकेशन स्किल्स, second is the technical, third real time, and fourth is the relevant exposure. Basically 4 चीजें, this 4 skill set change your domain from the job seeker to the job person who is working as a network engineer. तो इसके अंदर हम मेन इस पे फोकस करते हैं. अगर मैं बात बताऊं ये चारों के चारों कैसे यूजफुल हैं आपके लिए, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द सेकंड इज द टेक्निकल स्किल्स. कॉम स्किल्स के अंदर वी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि how this English, this particular language English can help you to reach out that level. You don't have to be very fluent. आपको कितना है कि बस आप कन्वे कर पाएं कि what exactly you are doing in your current job, या आपका roles and responsibility कैसा है, आप अपनी client meeting में उस बात को कन्वे कर पाएं, which is very helpful and needed. अगर मैं सेकंड बात बताऊं टेक्निकल स्किल सेट की, तो टेक्निकल स्किल सेट समथिंग कि यार वहां पे हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो बेसिकली कुछ सर्टिफिकेशन नॉलेज बेस्ड ही है, बट अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट. हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आए बेसिकली नेटवर्क कैसे काम करता है. एक कंपनी के अंदर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नेटवर्क का पर्पस क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, हम उसके अंदर वो समझाना चाह रहे हैं टेक्निकल पार्ट पे. सेकंड, हमारा उसमें पर्सपेक्टिव रहता है कि आपको टेक्निकल के थ्रू हमारी रियल टाइम ट्रेनिंग समझ में आए. और अगर आपको हमारे रियल टाइम ट्रेनिंग समझ में आती है, तो पहले ब्रीफ कर दूं आपको व्हाट एग्जैक्टली इज द रियल टाइम ट्रेनिंग. इन द रियल टाइम ट्रेनिंग, अ वेरी हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन having 13 years plus experience guy from 0 to the 100% knowledge कि नेटवर्क मैनेज होता कैसे है. नेटवर्क समझना, नेटवर्क मैनेज करना, ट्रबल शूट करना, दोनों बहुत डिफरेंट पार्ट है. और दोनों में जो डिफरेंस है वही टेक्निकल और रियल टाइम में डिफरेंस है. हाँ, कहीं ना कहीं हम टेक्निकल और रियल टाइम में वी मे टीच यू दी समवॉट अ सेम थिंग, लेकिन जब चीज़ें टेक्निकल पार्ट से जब रियल टाइम में आती हैं तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं. ये इसी तरीके से एग्जांपल है कि मैं आपको पेन और पेपर यूज़ करके आपको 2 व्हीलर चलाना सिखाऊं, तो मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता सकता हूं, बट आई कैन नॉट मेक यू परफेक्ट इन ड्राइविंग, या कुछ भी ऐसा नहीं पॉसिबल. तो उसके अंदर रियल टाइम के अंदर होता है, हम आपको ट्रबल शूटिंग सिखाते हैं, नेटवर्क मैनेज करना सिखाते हैं. दिस इज योर एक्चुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको यही तो मैनेज करना है कंपनी में जाके. और एक बार जब ये तैयार हो जाता है आपका कॉम्स टेक्निकल रियल टाइम, देन यू कम्स टू द फोर्थ पार्ट, रेलिवेंट एक्सपोजर. अब यहाँ पे हमारी यूएसपी काम करती है आफ्टर द रियल टाइम ट्रेनिंग. यस, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट रियल टाइम ट्रेनिंग इज आवर यूएसपी. बट एक बात बता दूं कि रेलिवेंट एक्सपोजर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट. अब आपने अपने आप को टेक्निकली या रियल टाइम में प्रिपेयर कर लिया है, पर जॉब कहाँ? दिस इज द मेन क्वेश्चन. अब करना क्या है?
अब क्या नौकरी या किसी और जॉब पोर्टल पे रिज्यूम अपलोड कर दिया एंड यू विल गेट अ जॉब? नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो वी नीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मार्केट. यार एक्चुअली आपकी प्रोफाइल जो है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश है. बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट के अंदर. तो हमारे पास एक प्रिसाइज टीम है जो इसके ऊपर काम करती है और आपके लिए राइट ऑप्शन निकालती है. आपकी स्क्रीनिंग राउंड के बेसिस पे जो हम इंटरनली कंडक्ट करते हैं, आपके कॉम्स के बेसिस पे हम आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं. वी विल हेल्प यू आउट विद ईच एंड एवरीथिंग. चाहे वो इंटरव्यू क्वेश्चंस हो, चाहे वो इंटरव्यू राउंड्स हो, हम आपको सब जगह सपोर्ट करते हैं और उसके थ्रू आपके लिए पहले आपकी प्रोफाइल प्रिपेयर करते हैं ताकि आप अप्रोप्रिएटली उसको फैच आउट कर पाओ कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है आप मैच कर रहे हो नहीं कर रहे हो. एक बार वो काम हो जाता है तो फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, आपकी प्रिपरेशन होती है और आपका इंटरव्यू प्रोसेस चलता है जिसमें हम आपको फुल सपोर्ट देते हैं. और एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारे उसके बाद भी प्रोसेस रहती है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन, आपकी ऑफर लेटर प्रोसेसिंग. वहाँ मेरी पूरी डेडिकेटेड टीम है जिसके लिए काम करती है. और एक्चुअली मैं नितिन गोस्वामी, मैं भी आपको वहीं मिलूंगा. द लास्ट पार्ट विच इज रेलिवेंट एक्सपोजर, दिस इज माई फोर्टे, जो मेरे को बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है. प्रोफाइल मैचिंग से लेके प्रोफाइल एग्जीक्यूशन तक वो मेरा बहुत अच्छा टास्क है. उसको मेरे को काम करने में आई रियली एंजॉय दैट पार्ट. और एक बार जब मुझे कम्युनिकेशन टेक्निकल रियल टाइम से बंदा सही तरीके से मिल जाता है ना, तो एक्चुअली आई नो दैट हाउ टू प्लेस दैट पर्टिकुलर पर्सन. वो मेरा काम मुझे क्लियर है कि मुझे क्या करना है. तो एक बार ये 4 स्किल सेट तैयार हो जाते हैं तो वी एक्चुअली मेक देम प्लेस. तो यही एक पूरी प्रोसेस है एनडीएस, नेटवर्क डेटा स्पेशलिस्ट, जो बेसिकली डेफिनेशन ही एक्सप्लेन करती है कि आपको हम किस लेवल पे कंपनी में कहाँ प्लेस करने वाले हैं. तो मैं एक रफली आइडिया बता सकता हूं इसका कि आप एक बार अगर प्रिपेयर कर लें तो आप इजीली 6 to 12 लाख के पैकेज में आप किसी भी एमएनसी में अच्छे लेवल पे बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आप प्लेस हो सकते हैं. So I understand that you guys are providing all this training, but in a world where there is no guarantee about anything, how are you guys providing a job guarantee? Perfectly fine. So basically, first of all, we need to understand about the job guarantee. The job guarantee that we provide, the job guarantee which is provided by the other people in the market. अच्छा, उनका क्लियर है कि if you are looking for a job, तो आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन या कुछ टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट अ जॉब. इफ वी टॉक अबाउट दी एनजी, तो हमारे पास क्लैरिटी है दैट वी हैव अ सर्टेन स्किल सेट. आपको उस पर फोकस करना है, तैयारी करनी है, एंड यू विल गेट प्लेस्ड. ठीक है, तो इसको इस तरीके से स्टार्ट करते हैं दैट फर्स्ट वी मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट अ जॉब इन नेटवर्किंग. हम पहले आपको ये समझा देते हैं कि आपको नेटवर्किंग में जॉब कैसे मिलेगी. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसमें आपको. लेट्स से कि इफ आई आस्क अ कप ऑफ टी, और कप ऑफ टी के लिए मैं आपको एक पैन देता हूँ, आपको टी पाउडर देता हूँ, मैं आपको मिल्क देता हूँ, जो भी इंग्रेडिएंट्स उसके चाहिए होते हैं. तो क्या गारंटी है कि उससे चाय बनेगी, कॉफी नहीं बनेगी? आई होप यू अंडरस्टैंड. उससे चाय ही तैयार होगी. तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड. अगर मार्केट में एक बंदे को नेटवर्क इंजीनियर बनाना है तो देयर इज अ सर्टेन स्किल सेट. हमें कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट पे काम करना है. वो स्किल सेट किसने बनाए? वो स्किल सेट कंपनी के बेस पे है, यानी इंडस्ट्री बेस्ड है. एक कंपनी है जो किसी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर चला रही है, मींस एचसीएल की बात करूं, वो बैंक ऑफ अमेरिका का एक इंफ्रास्ट्रक्चर चला रही है कि सारे के सारे बैंक ऑफ अमेरिका पे 2 लाख एम्प्लॉइज हैं. पर वो तो बैंकर्स है ना, उन्हें नेटवर्क को मैनेज करना नहीं आता या उनको अपने कंप्यूटर सिस्टम मैनेज करने नहीं आते. तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने किसको दिया? उन्होंने एचसीएल टेक्नोलॉजीज को दे दिया. आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज उनका नेटवर्क संभाल रही है इतने सारे एम्प्लॉइज का. तो उसके लिए उनको नेटवर्क इंजीनियर्स हायर करने हैं. तो उन्होंने कैसे हायर करना है? तो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन रिलीज करना है कि भाई वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल और उसको ये सारे स्किल सेट्स आने चाहिए. तो क्या हो सकता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी कर सकता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल कि हमें इतने एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए या हमें ऐसा बंदा चाहिए. तो उसी अकॉर्डिंगली उसी को मिक्स करके हमारे लिए वो इंग्रेडिएंट है. दैट जॉब डिस्क्रिप्शन इज वर्क लाइक एन इंग्रेडिएंट फॉर अस. हम उसी पे काम करके हमने अपना प्रोग्राम बनाया है. हम उसको उसके बेस पे आपको तैयार करते हैं एंड वी आर 100% श्योर कि आप उसको करने के बाद आप प्लेस हो जाएंगे. जिस तरीके से मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया कि टी लीव्स के एग्रीमेंट से टी बनेगी, कॉफी पाउडर से कॉफी बनेगी. Okay, so got it that you provide this training, but what exactly is the training curriculum? How have you designed it? What all it includes? Perfectly fine. Basically, when we talk about the training content, so let me introduce myself. I already worked as a network engineer. I have a good experience in my background about the managing the profile, about the networking, how the company works. So me and few of my colleagues who's providing the real-time training in my company nowadays. So we have designed the curriculum in a way through which you actually understand how to proceed from the scratch level, that is 0 to the 100% to perform a task as a network engineer. तो जब हम कम्युनिकेशन टेक्निकल ट्रेनिंग जो मैंने बताया 4 स्किल सेट जिस पे हम काम करते हैं, तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो हम वी स्ट्रांगली बिलीव कि आपको नेटवर्किंग का नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं पता. व्हाट इज नेटवर्किंग? यू डोंट नो.
हम वहां से स्टार्ट करते हैं एंड हाउ टू ट्रबल शूट अ बीजीपी या मेजर इश्यूज जो नेटवर्किंग में बड़ी चीजें होती हैं, हम वहां तक आपको लेके जाते हैं। तो जो करिकुलम है वो प्रिसाइजली स्टार्ट होता है बेसिक देन एडवांस, बेसिक राउटिंग देन एडवांस राउटिंग, बेसिक स्विचिंग देन एडवांस स्विचिंग, बीजीपी, एमपीएलएस और जो भी रिक्वायर्ड मतलब इंग्रेडिएंट हैं, जो जरूरत है हमारी एक नेटवर्क सॉलिड नेटवर्क इंजीनियर बनाने के लिए, वो हमने स्टेप बाय स्टेप हमने सारा का सारा हमने अपने करिकुलम में ऐड कर रखा है। लेट मी रिपीट अगेन, जो बेसिक से स्टार्ट होता है, अगर हम बीजीपी भी पढ़ा रहे हैं तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसे एडवांस तक लेके जा रहे हैं। जैसे एमपीएलएस पढ़ा रहे हैं तो बेसिक से एडवांस तक, एसडीएन पढ़ा रहे हैं बेसिक से एडवांस तक, और जितना आपको जरूरत है। जैसे हम इसमें क्लाउड पढ़ाते हैं एडब्ल्यूएस, तो नेटवर्किंग में क्लाउड की कितनी नॉलेज होनी चाहिए, एडब्ल्यूएस के कौन कौन से टूल्स उसमें काम आते हैं, वी इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, लेट्स से वी जस्ट गो थ्रू द सिक्योरिटी पार्ट एज वेल। अब जब हम एक फायरवॉल है, बहुत कॉमन है सिस्को की एएस से, अगर मैं सिस्को एएस से पढ़ा रहा हूं तो वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, वी रीच आउट टू दी पर्टिकुलर लेवल की जहां पे आपको कोई भी ट्रबल शूटिंग स्टेप या कहीं भी उसकी जरूरत पड़ती है, तो यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज विद यू। तो ये टोटल चीजें हम जिन पे काम कर रहे हैं, पहले कम्युनिकेशन और टेक्निकल के अंदर जो कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जब ये बंदा तैयार हो जाता है, दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, द एक्स प्रोफाइल, एक बार वो प्रिपेयर हो जाता है तो हम उसी अकॉर्डिंग उसको लेके जाते हैं रियल टाइम ट्रेनिंग पे। अब रियल टाइम ट्रेनिंग में वी बिलीव दे ऑल आर लुकिंग फॉर द जॉब। हमें पता है कि वो सारे के सारे बंदे अब नौकरी पे जाने वाले हैं या जॉब सर्च करने वाले हैं, तो वी स्टार्ट अगेन फ्रॉम द वेरी बेसिक। अब हमारे लिए उनको कुछ नहीं पता है आईटी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, और थोड़ा सा बेसिक नेटवर्किंग का आइडिया। तो जो हमारे रियल टाइम ट्रेनर्स हैं वो स्टार्ट करते हैं, दोबारा से कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि राउटिंग रियल वर्ल्ड में कैसी होती है। एक कमांड है शो वर्जन। आपने, अगर मैं बताऊं, आपने जब अपनी ट्रेनिंग शुरू करी, मे बी आपको टेक्निकल आइडिया नहीं है, बट मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने कमांड रन करी शो वर्जन। अब वो आपके लिए बेसिकली कंपनी है, जब आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक टेक्निकल में पढ़ रहे हैं तो एक कमांड है जिसके थ्रू आप डिवाइस का वर्जन चेक कर सकते हैं। बट जब आप जैसे रियल वर्ल्ड में जाते हैं ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड जो आपके ट्रबल शूटिंग में सबसे पहले काम आती है, और आपको कोई आइडिया नहीं था, यू हैव नो आइडिया कि टेक्निकल टाइम में कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप रियल वर्ल्ड में पहुंचे तो आपको पता चला व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड। सो दिस टेक यू फ्रॉम द टेक्निकल टू द रियल टाइम पर्सपेक्टिव। तो मैंने कैसे बताया, रियल टाइम में भी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक, दोबारा से आपके टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करते हैं रियल टाइम के अकॉर्डिंगली, कि आपकी ये चीजें जो आपने टेक्निकल पढ़ी है रियल टाइम में कैसे काम होती है। एक बार जब वो तैयार हो जाती है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं कैसे काम करता है। अभी आपने कहीं नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं कैसे एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे मैनेज होती हैं चीज़ें, डिफरेंट आईटीएल प्रोसेस क्या होती है, इंसिडेंट मैनेजर, चेंज मैनेजर, ये सब लोग कौन होते हैं, कैसे काम करते हैं, टिकटिंग टूल क्या है, मॉनिटरिंग टूल क्या है, आपको कोई आइडिया नहीं इन चीज़ों का। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि किसी बंदे को आपकी रिमोट साइट पे कोई इशू आया है तो वो आपको पर्सनल फोन थोड़ा करेगा आपके सेल फोन पे, वो तो इशू रेज करेगा। और इशू कैसे रेज करता है, उसे कहते हैं टिकट। वो टिकट रेज होगी जो आपकी बिन में आके फ्लैश होगी, आप वहां से उसे पिक करोगे, ट्रबल शूटिंग शुरू करोगे। अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक टिकट आई, जॉन इज नॉट एबल टू कनेक्ट। अब आप कोई भी सिस्को के प्रेस की बुक उठा लो या कोई भी अदर, उसका आंसर आप ढूंढो, यू विल नॉट गेट द आंसर। आंसर क्यों नहीं मिलेगा? इट इज नॉट रिलेटेड टू द टेक्निकल टर्म, इट इज समथिंग विच इज रियल टाइम। मतलब जॉन इज नॉट एबल टू कनेक्ट, हैविंग अ डिफरेंट स्टेप्स टू चेक आउट कि इस चीज को कैसे ट्रबल शूट करना है। वो स्विच का भी इशू हो सकता है, वो नेटवर्क में आईएसपी का भी इशू हो सकता है, वो हमारे कोर लेवल पे भी हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जहां वो इशू रेज हो सकता है। तो जो हमारा रियल टाइम ट्रेनर अभी बेसिक से पहले आपको समझा के अब सीधा इस लेवल पे ले जा रहा है दैट यू कैन ट्रबल शूट दैट पर्टिकुलर इशू। एक बार जब उन्होंने ये चीजें बताई आपको, दे विल मूव टू दी सर्टेन टिकट्स। कुछ 8 to 10 टिकट्स कुछ ऐसी हैं, आप नेटवर्किंग में, इफ यू आर वर्किंग एज अ नेटवर्क इंजीनियर इनटू दी राउटिंग, स्विचिंग, एंटरप्राइज इंफ्रा, ये कॉमन है, ये आनी ही आनी, दिस इज कंफर्म। I know I may be sound very confident, but it is true. If you have anyone in your reference that works as a network engineer, it is 100% verified कि ये issues इसी से related, somewhat पैटर्न चेंज हो सकता है या रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है, बट इट इज रिलेटेड टू। अगर हमें नेटवर्क फ्लक्चुएशन का इशू आना है तो वो आप नेटवर्किंग में कहीं भी जॉब कर रहे हो, वो तो सेम इशू आना है। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम द 1 इशू टू द 8-9 इशूज। अगर एक बार आपने वो कवर कर लिए तो यस, यू कैन परफॉर्म योर टास्क till the package of 12 lakh, 13 lakh, 14 lakh. This is my surety कि आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको किसी और सर्टिफिकेशन पे जाना पड़ेगा। अगर कंपनी का कोई बंदा कहता है दैट यू नीड टू ब्रिंग दिस सर्टिफिकेशन, तो आस्क देम द वाउचर, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको सर्टिफिकेशन देता हूं। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। So, do you guys have enough space, enough devices for the candidates, to equip them? Perfect question. So basically, डिवाइस इज समथिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एक तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी लेनी है कि हमें टेक्नीशियन बनना है या नेटवर्क इंजीनियर बनना है।
देखो अगर आपको टेक्नीशियन बनना है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो पुट द केबल इन द डिवाइसेस या उसे रैक पे उसको माउंट करना है, तो दिस विल बी योर डे टू डे टास्क, आपके टास्क रहेंगे। तो पहला एक चीज़ क्लैरिटी दे दे, वी डोंट वर्क इन टू द टेक्नीशियन जॉब, वी हेल्प यू टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर। अब नेटवर्क इंजीनियर के क्या टास्क होते हैं, दैट ही और शी हैज़ टू मैनेज द नेटवर्क इशूज़, डेली जो नेटवर्क इशूज़ आते हैं उसको अपने पीसी के सामने बैठ के मैनेज करना होता है। अब अगर उधर डेटा सेंटर जहाँ पर्टिकुलर डिवाइसेस सारे लगे होते हैं वहाँ पे कोई इशू आता है, तो उसके लिए हमें एक अलग से टीम मिलती है, हैंड्स एंड फीट टीम। उस टीम का नाम होता है हैंड्स एंड फीट टीम। वो टीम क्या करती है, आपके लिए जाती है और आप जो सजेस्ट करते हैं वहाँ पे वो केबल चेंज करती है, डिवाइस चेंज करती है, और आपको कुछ ऑर्डर चेंज करना है डिवाइसेस का, वो आपके लिए करते हैं। दे हैव अ डेडिकेटेड टीम। अब इसके लिए आपको डिवाइसेस की कितनी नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए आपको कितना एक्सपोजर होना चाहिए डिवाइसेस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर द सिंपल थिंग दैट वी हैव द इनफ लैब दैट ईच ऑफ आवर स्टूडेंट हैविंग 3 सेपरेट रैक्स टू एक्सेस, यानी एक रैक में जितने डिवाइसेस होते हैं हर एक बच्चे पे 3 रैक आती है। ऐसा क्यों? एक बैच में जो हमारी कैपेसिटी है मैक्सिमम 10 है, और लेट्स से अगर हमारे पास 30 रैक्स है तो यू कैन इजीली मल्टीप्लाई कि हमारे पास कितनी रैक हैं पर बच्चे पे, क्योंकि वहीं कंपैरिजन में कहीं और देखें अगर किसी के पास 100, 60, 40 रैक्स हैं, वहीं कंपैरेटिवली हम किसी और के पास देखें किसी के पास 60, 70 रैक्स हैं और वहाँ पे 100 स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे एक रैक के लिए बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है। और पहली चीज़ बता दूँ, वी डू नॉट फोकस ऑन द रैक। यहाँ मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि वी डोंट फोकस ऑन द रैक। रैक इज समथिंग विच हेल्प्स यू टू जस्ट क्लियर दी सर्टिफिकेशंस। आपको कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन करना है, वी आर मोर इनटू द डिवाइसेस। हम डिवाइसेस के साथ खेलना पसंद है। हमें एक डिवाइस को मैं आपको ओपनली दे देता हूँ, क्या लो इसमें केबल कनेक्ट करो, ये 3 डिवाइसेस लगाओ, अपने अकॉर्डिंग कुछ नेटवर्क बिल्ड करो इसके थ्रू। तो दैट इज समथिंग दैट टेक्स आउट अ पर्टिकुलर नेटवर्क इंजीनियर फ्रॉम यू। आप पर्टिकुलर एक नेटवर्क सेट है, आप उस पर जा रहे हो, चले चलाए पे काम कर रहे हो, बस आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो यू बिलीव दैट यू आर अ नेटवर्क इंजीनियर। आई डोंट बिलीव इट। आप हाँ उस सर्टिफिकेशन को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं जिसके लिए आप वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए जैसा मैंने बताया, मैं ओपन एनवायरनमेंट देता हूँ, ओपन डिवाइसेस देता हूँ, you can do whatever you want to do, and this is more than enough. Okay, so let's say that I get placed after doing this program, but is there anything like a job surety? What if the company says goodbye to me, say after 3-4 months? So this is something I'm expected a question from the every place candidate, and it makes sense. So basically I need to clear few things here. सबसे पहली बात, आपको जॉब मिली कैसे? There is something called offer cum appointment letter. आपको जब वो आपकी ईमेल आईडी पे रिसीव हो जाता है तो उसमें कुछ पॉइंटर्स क्लियर मेंशन रहते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं विच मेक्स यू अंडरस्टैंड कि कंपनी क्या ऑफर कर रही है। जैसे आपका सैलरी, आपके प्रोबेशन पीरियड, आपकी वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, एवरीथिंग इज मेंशन इनटू दी ऑफर लेटर। वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको वो क्या ऑफर कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये भी मेंशन है कि कहीं आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो नहीं ले रहे कि 3 to 4 मंथ या 5 मंथ या 6 मंथ आपको ले ऑफ कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो दैट्स अ जेन्युइन जॉब, और ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो इसके बाद मूव करते हैं, जब आपके पास ऑफर कम अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और वो कंफर्म है, सारी चीज़ें कंफर्म है, तो क्या केसेस बनते हैं कि आपको कंपनी निकाल सकती है। तो पहले मैं चीज़ बताता हूँ कि एक सिनेरियो होता है, इफ एनीथिंग हैपन एक्सेप्ट आपकी डिग्री का इशू आ गया, आपकी डिग्री में कुछ प्रॉब्लम थी और वेरीफाई नहीं हुई, तो आपकी जॉब जा सकती है। या आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो आपकी जॉब जा सकती है। दैट मेक्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द कंपनी। या आपने कोई मेस कर दिया, आपने मैनेजर के साथ आपने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, या आपने विमेंस जो आपके साथ काम करती है वहाँ पे कुछ इशू क्रिएट कर दिया, तो दे आर फ्यू केसेस जहाँ पे आप पे सीरियस एक्शन लिया जा सकता है। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो कि आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे, यू नॉट एबल टू परफॉर्म। मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, फिर भी आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आज आपसे एक एस्केलेशन आ गई। एस्केलेशन एक वर्ड यूज़ करते हैं जब आपसे कोई गलती हो जाती है, आप टाइमली कोई टास्क अचीव नहीं कर पाते, तो उसे कहते हैं एस्केलेशन। क्योंकि आपके पास तो टीम है, आपसे नहीं हुआ तो आपसे अपर सीनियर करेगा, उसके ऊपर करेगा। आपकी एस्केलेशन आ गई, यानी आपकी प्रॉब्लम किसी सीनियर ने रिजॉल्व करी, तो यू विल गेट अ मीटिंग, आपको समझाया जाएगा, यू विल गेट अ टाइम एज वेल। यू कैन रिकनेक्ट विद मी एज वेल कि सर मेरे साथ ये इशूज आ रहे हैं, जस्ट हेल्प मी आउट। लेकिन फिर भी परसिस्ट करता है, आप फिर भी वही सेम प्रॉब्लम आप रिपीट करे जा रहे हैं। अगर लगता है आपसे काम नहीं हो पा रहा तो कंपनी पहले आपके ऊपर HR केस खोलती है, विच टेक्स टाइम, और आपको इनफ टाइम मिलता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और पहले HR केस में भी आप करने के बाद दोबारा आपकी एस्केलेशन होती है तो दोबारा HR केस खुलता है। तो जनरली जो कंपनीज की पॉलिसी है उसमें 2 से 3 तो मिनिमम HR केस आपको मिलते ही मिलते हैं। हाँ, फिर भी नहीं होती है तो फिर तो बहुत ज़्यादा एक्सेस इंसल्ट हो जाती है, और तब एक सिनेरियो बनता है कि कंपनी को इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपके ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग तक, उसके बाद KT, दैट इज अ नॉलेज ट्रांसफर, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको होता है 1 वीक इज एन हनीमून पीरियड। आपको खिलाते हैं, आपको एक अच्छे से ऑडिटोरियम में रखते हैं, वहाँ पे सारा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारी टीम होती है जिनका काम आपको तैयार करना है। तो कंपनी का इतना बड़ा लॉस हो रहा होता है, वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि आप सर्वाइव करो, और आप इतना करने के बाद भी सर्वाइव नहीं करते
तो पहले तो आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वी हैव इंटरनल स्क्रीनिंग सिस्टम, और आपने स्क्रीनिंग क्लियर करी और वहाँ काम ना कर पाओ, दिस इज इम्पॉसिबल टास्क। बट हाँ, आपका माइंडसेट बन गया कि मैंने काम नहीं करना है और मैं नहीं करूँगा, मुझे तो ब्लेम करना है एनजी को कि नहीं तुमने मेरे को फेल करवा दिया, तो दैट इज़ अ सेपरेट ऑप्शन। अदरवाइज देयर इज नो चांस कि आप कंपनी से ले ऑफ हो जाए।